proof of laws of reflection by using Huygens principle. By using Huygens principle. बच्चे that is we have to prove I is equal to R. देखिए बच्चे, in this we want to prove I is equal to R. This is the polished surface, that is the mirror. It is a mirror or a polished surface on which this wavefront, this is the incident wavefront. ठीक है, ये सन से इन्फिनाइट ऑब्जेक्ट से कोई लाइट आ रही है एंड फ्रॉम द इन्फिनाइट ऑब्जेक्ट द लाइट कम पैरेलल हो इन वेवफ्रंट आर ऑलवेज अ प्लेन वेवफ्रंट. ठीक है, ये आपका इंसिडेंट वेवफ्रंट है. दिस इज द इंसिडेंट वेवफ्रंट. ये ऐसे चल रहे हैं, आगे आ रहे हैं. नाउ व्हाट्स हैपनिंग, लेट द इंसिडेंट वेवफ्रंट टू बी ए बी. ठीक है, this wavefront falls on the mirror. Now what's happening, this portion A has been reached the mirror but B has not reached the mirror. B is at B1. If I assume a wide region of the wavefront, अब देखेंगे बच्चे the wavelets which are coming from A has reached to A1, that is on the mirror, and B the wavelets which are coming from the B, ठीक है, have not reached the B mirror till now. तो ये वाली जो लाइट है ये अभी भी आगे बढ़ेगी. It will generate wavelet in the forward direction still. ठीक है, ये आपका इंसिडेंट वेवफ्रंट था, इंसिडेंट वेवफ्रंट. लेकिन यहां से मिरर क्या करेगा, रिफ्लेक्शन. Mirror will produce the wavelet in the backward direction. Mirror will produce the wavelet in the backward direction. And if you draw the tangent, what was the definition of wavefront? It is the locus of all points vibrating in the same phase. यानी कि it is obtained by drawing tangent. It is obtained by drawing tangent on the wavelets vibrating in the same phase. तो आपने क्या किया बच्चे, What you do, ये जो वेवलेट थे ये यहाँ वाइब्रेटिंग सेम फेज का मतलब कि अगर यहाँ से पांचवा वेवलेट है तो यहाँ से ही पांचवा ही लूंगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, यहाँ से फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ. ठीक है, आपने इन पे टेंजेंट ड्रॉ कर दी, इस पर भी कर दी और इस पर भी कर दी. ये आपका क्या आ गया, दिस इज द रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट. दिस इज द रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट. व्हाट इज इट शोइंग कि वेवफ्रंट ऐसे आ रहा है और ऐसे जा रहे हैं. वेवफ्रंट इज कमिंग लाइक दिस एंड गोइंग लाइक दिस कॉन्टिन्यूसली. दिस इज रिफ्लेक्शन. वेवफ्रंट ऐसे आके ऐसे जाना, दिस इज रिफ्लेक्शन. तो यहां पर ये काम हो रहा है, वेवफ्रंट आ रहे हैं वेवफ्रंट जा रहे हैं. दिस इज द इंसिडेंट वेवफ्रंट, दिस इज द रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट. Reflected wavefront will be perpendicular to the reflected light. Reflected wavefront will be perpendicular to the reflected light. Let it to be D point, let it to be E point. So time in which wavelet has moved from B1 to D. Time in which incident wavelet has moved from B1 to D in the same time. क्या हुआ है, reflected wavelet had moved from A1 to E. In the same time, reflected wavelet has moved from A1 to E. यानी कि B1 से D जाने का टाइम T था और A1 से E जाने का टाइम भी T है. तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम. लेट्स सपोज द स्पीड ऑफ लाइट इन दिस मीडियम इज c. So what you can write to B1D, speed into time ct, and what can you write to A1E, speed into time.
So you can see that B1D is equal to A1E. Let it to be equation 1. B1D distance is equal to A1E. Now, what is the angle of incidence here? In wave optics, the angle of incidence is the angle at which the देखो जनरली जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, जनरली जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो कौन सा एंगल होता है? एंगल मेड बाय द, हाँ बच्चे, डिस्टेंस, बच्चे B1D द, हाँ बच्चे ये दिस B1D ना, है ना, B1D इज द, देखिए द वेव फ्रंट इज कमिंग फ्रॉम AB, the part of wavefront which is coming from A has reached the mirror and get reflected. लेकिन जो B वाला पार्ट है वो तो अभी भी आगे चल रहा है ना? तो B1D is the extra distance traveled by the part BB1 before reaching the mirror. इतना इसे एक्स्ट्रा पार्ट ट्रेवल करना पड़ेगा मिरर पे पहुंचने से पहले। कुछ नहीं, उसे टाइम लिखा है, दिस टाइम टी, कि B1 से D जाने में जो टाइम है वो टी है, तो A1 से E जाने का टाइम भी टी है, क्योंकि तो जितने टाइम में ये आगे गए उतने टाइम में ये वापस रिफ्लेक्ट हुआ है। ठीक है, इफ द टाइम फ्रॉम B1 टू D is T, then the time for A1 to E is also T. ठीक है, now in triangle B1DA1, B1DA1, हाँ, we were about the what is angle of incidence and what is angle of reflection. रे ऑप्टिक्स में जो नॉर्मल के साथ एंगल बनता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, और वेव ऑप्टिक्स में जो वेव फ्रंट मिरर के साथ एंगल बनाता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, ऑल्दो बोथ विल बी इक्वल। रे ऑप्टिक्स पढ़ते हैं तो रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड इन वेव ऑप्टिक्स जो वेव फ्रंट मिरर के साथ एंगल बनाता है, ठीक है, बोथ आर इक्वल। ठीक है, तो बोथ आर द सेम थिंग, बस रे ऑप्टिक्स में हम एंगल पढ़ते हैं नॉर्मल के साथ और वेव ऑप्टिक्स में एंगल पढ़ते हैं मिरर के साथ। तो दिस इज माय एंगल ऑफ इंसिडेंस and this is my angle of reflection. I want to prove that this angle of incidence is equal to the angle of reflection. So in triangle B1DA1 and triangle EA1D, what can you see that angle 1 is equal to angle 2, each 90 degree? Each 90 degree. You have proved that A1E is equal to B1D. B1D is equal to A1E, proved above here. And A1D is common in both. The distance A1D is common in both. A1D is equal to A1D, common. So what can you say? That triangle B1DA1 is similar to congruent to triangle EA1D. Is congruent to triangle EA1D by RHS congruency. राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और एक एक साइड इक्वल है, तो I is equal to R by CPCT. That what we are to prove. हमें यही चीज प्रूव करनी थी, कर दी। रियर नोट हो गया बच्चे? ठीक है, अब आता है बच्चे प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बाय यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्लस स्नेल्स लॉ यू वांट टू प्रूव। नाउ यू वांट टू प्रूव स्नेल्स लॉ। देखिए बच्चे,
This is a line separating two surface separating two medium of different refractive index. In this, the speed of light is c1. In this medium, the speed of light is c2. Again, a wavefront. This is the AB incident wavefront. This is the incident wavefront is falling on the boundary of the two medium. The problem is still the same. This is the incident one. Incident wavefront will be perpendicular to the direction of propagation. What's the problem? The light part which is coming from A has reached the surface boundary, but the part which is coming from B has not still reached the boundary. Okay, I let assume that mu2 is greater than mu1, then I know C2 will be less than C. जहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होगी. ठीक है, तो व्हाट इज हैपनिंग, यहां से लाइट रिफ्रैक्ट कर रही है, दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है, ये सेम मीडियम में चल रहा है, जबकि दोनों मीडियम में स्पीड अलग अलग है. B1 वाला पार्ट C1 स्पीड से चलेगा, लेकिन जो A1 वाला पार्ट है इट विल नाउ मूव विद स्पीड C2 एंड C2 इज लेस देन C1. इफ आई अज्यूम दैट दिस इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, तो देखिए बच्चे ये तीन कदम रखता है, बड़े बड़े तीन वेवलेट, ये तीन वेवलेट ही जनरेट करेगा लेकिन छोटे छोटे, क्योंकि इसकी स्पीड कम है. तो if you draw the tangent on these two, then you will get the new wavefront. This is the refracted wavefront. आप अपने आप ही देखिए वेवफ्रंट मुड़ गया, क्योंकि ये बड़े बड़े टाइम यहाँ B1 से डी जाने का टाइम इसका T है. सिमिलरली A1 पॉइंट से E जाने का इसका टाइम भी E है. टाइम दोनों का सेम है, टाइम इज सेम फॉर बोथ, बट देयर इज अ डिफरेंस इन द स्पीड. तो ये कम चला, वो ज्यादा चला, वेवफ्रंट बेंड कर गया. दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज द एंगल ऑफ refraction. I is the angle of incidence and R is the angle of refraction. ठीक है, again the image is same. The time for B1 to D is equal to time for A1 to E. Now the B1D is equal to speed into time, C1 into T, and A1E is equal to C2T. Both are not equal. जो पिछले केस में रिफ्लेक्शन के केस में दोनों डिस्टेंस इक्वल हो गए थे, these distances are not equal now. Now in triangle BA1D, in triangle BA1D, sin I is equal to, sin I is perpendicular upon hypotenuse, that is BD upon A1D. BD upon A1D. What is B1D? What is B1D? C1T upon A1D. In triangle A1ED, sin R is A1E upon AD. A1E upon A1D. तो ये आ जाएगा C2T अपॉन A1D. दोनों को डिवाइड कर दीजिए. ठीक है, डिवाइड 1 and 2, let it to be 1, let it to be 2. If you divide 1 and 2, so sin I by sin R is equal to C1 by C2. If you divide 1 and 2, then sin I by sin R is equal to C1 by C2. But we know that mu2 by mu1 is always equal to C1 by C2. So you can replace C1 by C2 by mu2 by mu1, which is Snell's law. That is what is Snell's law is. Mu2 by mu1 sin I by sin R के equal है, that is Snell's law.
Is it clear to all? Okay. Now move forward. Next topic is interference. Next topic is interference. But in the last, in the 11th class, you have learned about B. Yes or no? Yes or no? Standing और stationary waves पढ़े थे, beats पढ़ी थी. Am I right? Am I right? ठीक है. तो देखिए बच्चे, तीनों में क्या अंतर है? बीट्स, इंटरफेरेंस एंड सुपरपोजिशन वेव्स, स्टैंडिंग वेव्स में. There are three cases. देखिए बच्चे, when the two waves are moving in the same direction and they superimpose on each other, but they have different frequency. They have different frequency. ठीक है, frequency different frequency but traveling in the same line, same direction, superimpose on each other. Then the resultant is called beat. Resultant is called beat. When two waves of same frequency traveling in straight line but in opposite direction, then the resultant is called standing wave. Resultant is called standing wave. ये आपने 11th क्लास में किया था. But when the two waves of same frequency, ठीक है, of same frequency superimpose on each other, then the resultant is called interference. Then the resultant is called interference. Although amplitude is same, amplitude of both the wave is same or nearly same in all the cases. In all three cases, amplitude is same. ठीक है. तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कब होता है? इंटरफेरेंस का मतलब होता है लाइट जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड या रिजल्टेंट इंटेंसिटी, रिजल्टेंट एनर्जी जो भी बनी है, जब ऐसी दो वेव टकराई है जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, एम्पलीट्यूड या तो सेम है या नियरली सेम है, जो एक ही डायरेक्शन तक चल रही थी, और जब ऐसी दो वेव आपस में टकराती है तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एनर्जी, उनको हम क्या कहते हैं विशेष फिनोमेना को? इंटरफेरेंस. डेफिनेशन लिखिए बच्चे इंटरफेरेंस की. हाँ, टकराना. जैसे ये दो वेव थी, पॉजिटिव नेगेटिव, और ये उल्टी वेव थी, इसके ऊपर सुपर टकरा गई, नेगेटिव पॉजिटिव, ये सुपर इम्पोज करेगी. ठीक है. तो देखिए बच्चे, इंटरफेरेंस की डेफिनेशन: द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड एंड एनर्जी, द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ intensity, amplitude and energy when two or more waves traveling in a straight line in same direction, traveling in a straight line in same direction, having same frequency and nearly same amplitude, traveling in a straight line in same direction, having same frequency and nearly same amplitude, but with constant phase difference, superimpose on each other. Phase difference, constant phase difference, superimpose on each other.
constant phase difference superimpose on each other. ठीक है बच्चे। तो आपने डेली लाइफ में बहुत सारी जगह इंटरफेरेंस ऑफ व्हाइट लाइट देखा है। ठीक है, ऑल्दो हमें व्हाइट लाइट का पढ़ना नहीं है, लेकिन आपने इंटरफेरेंस साउंड का तो बहुत जगह देखा है। जैसे कभी भी माइक में ऐसे ऐसे आवाज आने लग जाती है ना, माइक में अजीब साउंड आनी शुरू हो जाती है, वो इंटरफेरेंस है कि वहां पर दो साउंड वेव इंटरफेयर कर रही हैं। आप टीवी के पास मोबाइल रखो, जैसे ही कॉल आता है टीवी में डिस्टर्बेंस हो जाती है। क्यों? क्योंकि टीवी और मोबाइल के सिग्नल आपस में इंटरफेयर कर रहे हैं। बट दैट इज द इंटरफेरेंस ऑफ साउंड। In right now we have to focus only and only on the interference of light. इंटरफेरेंस ऑफ साउंड के एग्जांपल तो आपने बहुत सारे देखे हैं। जहां भी दो आपकी साउंड डिस्टरबेंस हो रही है, आपके सिग्नल के साथ कभी कभी दो आवाज आने लग जाती है, किसी और की आवाज आने लग जाती है, इसका मतलब ये एटमॉस्फेयर के अंदर आपका सिग्नल और दूसरे बंदे का सिग्नल इंटरफेयर करके आपको दोनों के सिग्नल दे रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज द इंटरफेरेंस ऑफ साउंड। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। But right now we are studying the interference of light. ठीक है, तो आपने बच्चे व्हाइट लाइट के इंटरफेरेंस के एग्जांपल भी देखे हैं। आपने देखा होगा बच्चे जहां भी कहीं कहीं सोप बबल होता है, सोप बबल के ऊपर आपको इंटरफेरेंस दिखने शुरू हो जाता है, कलर्ड पैटर्न दिखने शुरू हो जाते हैं। सोप बबल के ऊपर आपको कलर्ड पैटर्न दिखने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और आपने क्या देखा होगा बच्चे कि कहीं पर अगर तेल दिख रहा हो, उसके ऊपर भी आपको कलर पैटर्न दिखने शुरू हो जाते हैं, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम। कैन यू सी इन दिस डायग्राम? यू कैन क्लियरली सी इट इज अ सोप बबल। इसके ऊपर आपको सारे कलर मिक्स दिखाई दे रहे हैं, अंदर कोई कलर नहीं है इसकी, इट इज ओनली द व्हाइट लाइट। इसके अंदर जो है पड़ रही है केवल व्हाइट लाइट पड़ रही है, एंड व्हाइट लाइट की वजह से सातों के सातों कलर आपस में मिलजुल गए। The soap bubble is an example of white interference। यहाँ देखिए ये नीचे ऑयल बिखरा हुआ है, इस ऑयल के ऊपर जब व्हाइट लाइट पड़ रही है, ठीक है, तो आपको देखो यहाँ पर ये सारे कलर अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, दिस इज इंटरफेरेंस। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा डिस्पर्जन की वजह से सात कलर अलग होते हैं। आप सीडी के ऊपर सात कलर देखते हो, दैट इज अनदर फिनोमेना, डिफ्रैक्शन। ना तो इंटरफेरेंस है ना ही डिस्पर्जन है। सीडी के ऊपर आपको कलर पैटर्न दिखाई देता है ना, तो कलर पैटर्न ऑब्टेन होने का हमेशा मतलब ये नहीं होता कि वहां पर डिस्पर्जन ही हो रहा है। इट कैन बी बिकॉज ऑफ द इंटरफेरेंस और फ्रॉम द डिफ्रेक्शन। ऑल्दो हमें इंटरफेरेंस ऑफ व्हाइट लाइट नहीं पढ़ना। व्हाइट लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स, हमें नहीं पढ़ना इस चैप्टर में। वी हैव टू फोकस एंड स्टडी ओनली अबाउट द इंटरफेरेंस ऑफ सिंगल कलर। वी हैव टू स्टडी कि अगर सिंगल लाइट है तो वो इंटरफेरेंस कैसे करती है, मोनोक्रोमेटिक लाइट जिसे कहते हैं। वी हैव टू स्टडी द इंटरफेरेंस ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ओनली। तो बच्चे अगर मैं व्हाइट लाइट की जगह मोनोक्रोमेटिक लाइट कर दे, सिंगल कलर लाइट में कर देता हूँ मोनोक्रोमेटिक लाइट, तो देखिए यहाँ पर इसने दोनों में अंतर करके दिखाया है। The image in front of you is showing the distinct difference. The first one, this first image is showing the difference in the interference and the आप ये वाली this one. This image is showing the difference between the interference of single light and the white light. जो नीचे वाला पैटर्न है, जो नीचे वाला पैटर्न है, इट इज द इंटरफेरेंस ऑफ व्हाइट लाइट। इसमें सातों कलर अलग अलग हो रहे हैं ना, दिस इज द इंटरफेरेंस ऑफ व्हाइट लाइट। ये हमें नहीं पढ़ना, हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है इंटरफेरेंस ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। ये जो इंटरफेरेंस दिखा रखा है ग्रीन लाइट का है, इसमें क्या है देखो बीचों बीच ये इसमें देखो बिल्कुल सेंटर में एक डार्क ग्रीन है, फिर ब्लैक, फिर डार्क ग्रीन, फिर ग्रीन ब्लैक, ग्रीन ब्लैक, ग्रीन ब्लैक, ग्रीन ब्लैक, ऐसे चल रहे हैं ना बच्चे। इसी को कहते हैं बच्चे इंटरफेरेंस। इसको हम क्या कहते हैं बच्चे? इंटरफेरेंस ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, या फिर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस भी नाम देते हैं इसे। हमें ये पढ़ना है कि ऐसा कब होता है कि है व्हाइट, मैं केवल ग्रीन लाइट यूज कर रहा था,
हम अभी देखेंगे, हम खाली ग्रीन लाइट यूज करेंगे, लेकिन ऐसा पैटर्न बनेगा कहीं बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा, कहीं ग्रीन हो जाएगा, कहीं बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा, कहीं ग्रीन हो जाएगा। दिस वी हैव टू स्टडी। और इस लाइट पैटर्न को कहते हैं बच्चे फ्रिंजेस। लाइट पैटर्न को हम क्या नाम देते हैं बच्चे? फ्रिंजेस। तो फिलहाल अब धीरे धीरे करके इनको समझना शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चे, एग्जाम्पल ऑफ इंटरफेरेंस इन डेली लाइफ। इंटरफेरेंस, एग्जाम्पल इंटरफेरेंस इन डेली लाइफ। तो डेली लाइफ में तो हर जगह व्हाइट लाइट होती है, तो व्हाइट लाइट के इंटरफेरेंस के आपको दो एग्जांपल दिखा दिए। सोप बबल के अंदर जो आपको कलर पैटर्न दिखाई देता है, ठीक है, एंड ऑयल लेयर के ऊपर जो आपको कलर पैटर्न दिखाई देता है, 7 कलर जो आपको दिखाई देते हैं, दैट इज द एग्जांपल ऑफ इंटरफेरेंस। बट इन दिस चैप्टर वी हैव टू स्टडी ओनली अबाउट द सस्टेन्ड और परमानेंट इंटरफेरेंस। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी हैव टू स्टडी ओनली द सस्टेन्ड और परमानेंट इंटरफेरेंस। सस्टेन्ड और परमानेंट पैटर्न में क्या होता है बच्चे? एक कलर दिखाई देगा, सपोज रेड दिखाई दिया, फिर बिल्कुल ब्लैक, फिर क्या दिखाई देगा? बिल्कुल ब्लैक, फिर रेड, फिर ब्लैक, ठीक है, फिर रेड, ऐसे दिखाई देंगे। तो देखिए बच्चे, सस्टेन्ड और परमानेंट इंटरफेरेंस। परमानेंट या कैन से स्टडी। इंटरफेरेंस, हम इंटरफेरेंस कब होता है? जब दो लाइट टकराती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है एंड दे आर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, हैविंग द कांस्टेंट फेज डिफरेंस। तो बच्चे आप देखिए, यहाँ पर भी आपकी रेड लाइट का सोर्स था, आपने क्या करा? आगे एक कार्डबोर्ड रखा, इसमें दो छेद कर दिए। आपने सामने कार्डबोर्ड रखा सोर्स के और उसमें दो छेद कर दिए। लाइट इस सोर्स, इसमें से बल्ब में जाएगी, लाइट इस छेद में से जाएगी। तो ये जो है, ये दो अलग अलग सोर्स का काम करेंगे। हमने एक सोर्स से दो सोर्स बना लिए। इसका क्या एडवांटेज है वो भी आपको समझना है कि हम दो अलग अलग बल्ब क्यों नहीं यूज कर लेते। मैं चाहता तो दो अलग अलग रेड कलर के बल्ब यूज कर लेता, इंटरफेरेंस पड़ता नहीं, इंटरफेरेंस होगा ही नहीं। इंटरफेरेंस होने के लिए मेन सोर्स हमेशा एक ही रहना चाहिए। मोनोक्रोमैटिक या सस्टेन इंटरफेरेंस होने के लिए मेन सोर्स हमेशा एक होना चाहिए। आप उससे चाहे दो बना लो। एग्जांपल एक और तरीका बताऊं कि अगर आप, ये आपके एक सोर्स है, आपने यहां मिरर रख दिया, एक लाइट सीधी जा रही है स्क्रीन पे, एक लाइट ऐसे जा रही है, ये जाके इससे टकरा रही है। अगेन आपने एक सोर्स को दो सोर्स के जैसे यूज कर लिया, तब इंटरफेरेंस होगा। सस्टेन इंटरफेरेंस की आप कंडीशन समझ लीजिए कि ए मेन सोर्स एक ही होना चाहिए। ऐसा क्यों, मैं आपको लिखाऊंगा धीरे धीरे। फिलहाल तो आपने एक सोर्स से दो सोर्स बना लिए। अब यहां से जो लाइट जा रही है, when it superimpose on each other, then will show the interference pattern here। ठीक है, यहाँ पर क्या बनाएगी वो? इंटरफेरेंस पैटर्न। इंटरफेरेंस पैटर्न को हम क्या कहते हैं? फ्रिंजेस। यहाँ पर लाइट पैटर्न जो बनेगा उसको हम क्या नाम देते हैं? फ्रिंजेस। तो सस्टेन इंटरफेरेंस की पहली कंडीशन क्या होती है? सस्टेन इंटरफेरेंस की सबसे पहली कंडीशन क्या होती है कि लाइट एक ही कलर की होनी चाहिए, व्हाइट लाइट नहीं होनी चाहिए, 7 कलरों का कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन इज लाइट मस्ट बी, सोर्सेज मस्ट बी मोनोक्रोमैटिक। सोर्सेज मस्ट बी मोनोक्रोमैटिक। मोनोक्रोमैटिक का मतलब क्या होता है? सिंगल कलर। सोर्सेज मस्ट बी मोनोक्रोमैटिक, ब्रैकेट में सिंगल कलर। सेकेंड, ये जो होल करे हैं ये बहुत ही पतले होने चाहिए। क्यों? वो धीरे धीरे आएगा। स्लिट मस्ट बी नैरो। जो इनको हम कहते हैं, ये जो हमने होल करे हैं इनको हम कहते हैं स्लिट। ये जो स्लिट्स है मस्ट बी नैरो। ठीक है, वाई? ये हमारे धीरे धीरे आएंगे अब इस पर। वाई? सोर्सेज, देखो अभी यहां पर मुझे पता है यहां पर लाइट पैटर्न कैसा बनेगा बच्चे। आप देखिए यहां पर सपोज रेड लाइट, मैंने सपोज रेड लाइट यूज करी है,
तो यहां पर रेड कलर आएगा, फिर कैसा आएगा बच्चे, ब्लैक, फिर रेड आएगा, फिर ब्लैक आएगा, है ना। ऐसे नीचे ब्लैक रेड अल्टरनेट कलर आएंगे, रेड, ऐसे चलते रहेंगे। तो मैं जितनी मर्जी देर एक्सपेरिमेंट करता रहूं, जो रेड का कलर है वो यहाँ पर रेड ही रहेगा, ब्लैक नहीं हो सकता कभी। पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, जो एक कलर आता है उसको नाम देते हैं मैक्सिमा, और जो ब्लैक पोर्शन आता है उसको हम क्या नाम देते हैं, मिनिमा। ठीक है, जैसे आपको जब मैंने फोटो दिखाया इसमें ग्रीन ब्लैक ऐसे पोर्शन आ रहे हैं ना, तो जो ग्रीन वाला पोर्शन है उसको हम कहते हैं मैक्सिमा, और जो ब्लैक वाला पोर्शन है उसको हम कहते हैं मिनिमा। यहां पर क्या होता है, थर्ड पॉइंट में यू कैन राइट कि पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा इज फिक्स। इंटेंसिटी, ये रेड है तो रेड ही रहेगा, कहीं ब्लैक नहीं हो सकता, कहीं ग्रे नहीं हो सकता। इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज ऑलवेज फिक्स, इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज ऑलवेज फिक्स। फिफ्थ पॉइंट, सोर्सेज मस्ट बी, अगर पेपर में केवल कहे कि राइट टू कंडीशन फॉर सस्टेन इंटरफेरेंस, तो आपको फर्स्ट लिखनी है और फिफ्थ लिखनी है। ठीक है गरबल, यस बच्चे बोलिए, क्या हो गया बच्चे। ओके, ठीक है, सो यू कैन लीव नाउ, आई विल मार्क अटेंडेंस ऑफ ऑल, यू कैन लीव ऑल। ठीक है।